اس ناول کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن استری اٹھاتے ہی اسے جھٹکا سا لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ استری وہ آف کر کے گئی تھی، لیکن اب نہ صرف استری آن تھی بلکہ شان سے اس کے کپڑے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ڈلتے ڈلتے استری اٹھائی تو چپکا ہوا کپڑا بھی ساتھ اٹھ کے آ گیا۔ اتنا خوبصورت اور قیمتی سوٹ برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا مطلب ہے کہ شادی کے بعد تم لندن میں ہی آ جاؤ گے۔ کیوں؟ کیا میں گھر داماد بن رہا ہوں؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ تم سیریس نہیں ہوتے شہباز؟ ہم شادی کے بعد پاکستان میں تو نہیں رہیں گے؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ شہباز کو حقیقتاً خطرے کا احساس ہونے لگا۔ پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ برا مان کر بولی۔ کیا لندن میں لوگ نہیں رہتے؟ ایک بات میری بھی سن لو، اگر تم نہیں آ سکتے تو تم مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں پاکستان آؤں گی، اس نے قطعی لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ السلام علیکم۔ ایک بہت خوبصورت سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے دل بے قرار کا موسم۔ تو چلیے پھر اس ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ جب سے فائزہ پھپھو کا خط آیا تھا، سب کو بے چینی لگی ہوئی تھی۔ ارشما کب آ رہی ہے؟ البام نے کوئی 10ویں مرتبہ پوچھا۔ لاؤ کہو تو لکھ کر دے دیں، فائز نے چڑ کر کہا۔ کب آ رہی ہے؟ 100 مرتبہ تم لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ 11 تاریخ کو ارشما کی فلائٹ ہے۔ تم لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا عادت ہوتی ہے، بات سنتی نہیں، حفظ کرتی ہو۔ اب چھوڑو بھی، فارس نے کہا۔ یہ تو بتاؤ ارشما ہوگی کیسی؟ شہباز بھائی ہوتے تو بتاتے، وہ بھی پتہ نہیں کب آئیں گے۔ کیسی ہوگی کیا مطلب؟ جیسی ہماری فلموں کی ہیروئنیں ہوتی ہیں۔ اور ہماری فلموں کی ہیروئنیں کیسی ہوتی ہیں؟ احمد بھائی نے کہا۔ بھائی یوں کہ وہ لندن سے بھی آئیں گی تو بھی دوپٹہ ان کے سر پہ ہوگا، مشرقی حسن کا مکمل نمونہ، پاکستان جنہیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہوگا۔ سالے نے پتہ نہیں کس کا نقشہ کھینچا، فلمی ہیروئن کا یا ارشما کا، لیکن اپنی ارشما ایسی لگتی تو نہیں، فارس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بے وقوف، وہاں سردی ہی اتنی پڑتی ہے کہ جینس پہننی پڑتی ہے، اور جینس پہننے سے سوچیں تھوڑی بدل جاتی ہیں، فائق نے سب کو تسلی دی۔ اصل میں احمد بھائی کی شادی تھی اور فائزہ پھپھو خود تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی ارشما کو بھیج رہی تھی، اور سب خوب اندازوں کی ٹانگ توڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ مصیبت یہ تھی کسی نے بھی اسے دیکھا نہیں تھا سوائے شہباز کے، اور شہباز اپنے شکار پر گئے ہوئے تھے۔ صرف ایک تصویر آئی تھی جس میں ارشما نے جینس پہنی ہوئی تھی اور کتے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس بات سے قطع نظر وہ سارے کزنز کو متفقہ طور پر پسند آئی تھی۔ جس شام ارشما کو آنا تھا، بڑی سج دھج سے سب لوگ ارشما کو لینے گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد کسی کو اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا صحیح طرح سے سوگ بھی منا سکتا۔ بالکل ایسی تھی جیسے ہم کسی انگلش مووی میں ان کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ لمبا کوٹ، اس پر سے موٹے مردانہ شوز، کیسا مشرقی حسن اور کہاں کا مشرق۔ سب کی شکلیں ایسی ہو گئی تھیں کہ آخر سالے کو کہنا پڑا، تم لوگ ارشما کو خوش آمدید کہنے آئے ہو یا کسی کی ڈیڈ باڈی لینے؟ توبہ سالے، ایسی باتیں تو نہیں کرو، فارس نے برا سا منہ بنایا۔ تو پھر اپنا رویہ درست کرو، شکلیں دیکھو اپنی، ویسے ہی تم لوگ ہونک کم ہو جو اب اور پاگل لگ رہے ہو۔ ہاں اب ہم تمہیں کیوں اچھے لگیں گے، تمہیں لندن پلٹ کزن جو مل گئی۔ البام بھی جل کر بول پڑی۔ تم لڑکیاں کیا شے ہوتی ہو، احمد آہستہ سے بولا، اپنی ہم جنس سے جیلس ہونا شروع ہو جاتی ہو۔ ہم کیوں جیلس ہوں؟ وہ ہماری کزن نہیں، ہماری بہن ہے۔ جس طرح ہم سب کزنز آپس میں محبت سے رہے ہیں، لیکن میں قسم کھا کے کہتی ہوں اگر ہماری کزن کی جگہ یہاں پر کوئی ہمارا کزن آتا تو تم لڑکے، اگر تم لڑکیاں باجماعت اس کو کزن پر ملتی تب جیلس ہوتے۔ ویسے کسی کو شوق بھی نہیں ہے اپنا خون جلانے کا۔ فائق نے اتنا ہی کہا تھا کہ ارشما کے نزدیک آ گئی۔ سب نے ہی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، لڑکوں سے اس نے ہاتھ ملایا اور ان لوگوں سے گلے ملی۔ شکر ہے معاملہ الٹا نہیں ہو گیا، فارس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ویسے یہاں سردی تو نہیں پڑ رہی زیادہ؟ وہ اپنے کوٹ سے خود ہی گھبرا گئی۔ زیادہ کیا ارشما صاحبہ، یہاں تو کم بھی نہیں پڑتی۔ ہمارے ایک مزاح نگار تو کہتے ہیں کہ جب کراچی کے لوگ خبروں میں سنتے ہیں کہ لاہور اور کوئٹہ وغیرہ میں برف باری ہو رہی ہے تو کراچی کے لوگ بھی اخلاقاً سویٹر وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ فائق کے کہنے پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، باہر آتے ہوئے وہ سرسری سا بولی۔
हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं, असल में इतना गंदा हो रहा है इसलिए पूछ रही हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बड़े साफ़ सुथरे रखे जाते हैं, ये भी साफ़ है। जो लोग बाहर से आते हैं अपनी ऐनक से देखते हैं। साले के जल भून कर कहने पर वो हंस पड़ी। आप लोग बहुत हंसाते हैं। और ये बात तो शायद इसने मजाक में कही थी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हंसाते हैं। 2 दिन ही में सबको अंदाज़ा हो गया वो अकेली ही इतना हंसाती है, सबको इसने पीछे छोड़ दिया। बातें शुरू होती तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सबसे ज़्यादा रुश्मा ही बोलती थी। तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं होता रुश्मा, इतना बोलती हो? फ़ारस एक दिन पूछ ही बैठी। असल में 1 महीने के लिए आई हूँ, वक्त कम और बातें ज़्यादा। वो अपने बालों को झटकते हुए मुस्कुराई। वैसे अम्मी भी कहा करती थी कि तुम बहुत बोलती हो, लेकिन यार क्या करूँ, बोलने की तो आदत है। अच्छा ये बताओ, अहमद की शादी कब है? बस 10-15 दिन बाकी और होंगे। अभी 15 दिन पड़े हुए हैं और तुम लोगों ने यूँ अफरा तफरी फैलाई हुई है जैसे कल ही है। इत्तलान अर्ज़ है, हम लोग शादी की तैयारियां 3 महीने से कर रहे हैं। फ़ारस दुपट्टे में किरण लगाती हुई बोली। बात सुनो, क्या अहमद कोई मशहूर आदमी है जो इतनी तैयारियां हो रही हैं? वो झुक कर ऐसे राजदाराना अंदाज में बोली कि फ़ारस को हंसी आने लगी। जी नहीं, हमारे अहमद भाई बहुत कम कोई इंसान हैं। उन्हें शायद उनके ऑफिस के कुलीग्स ही पहचान लें तो बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पर शादियाँ इसी तरह होती हैं। हमारे यहाँ से मतलब हमारे माशरे में। लेकिन क्यों? ये तो फजूल खर्ची है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले पढ़ रही थी कि मार्गरेट थैचर ने पाकिस्तान के किसी इमदाद या कर्ज वगैरह की कोई स्कीम मंजूर की है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मार्गरेट थैचर ने स्कीम मंजूर की है तो तुम यूँ रोब जमा रही हो जैसे तुमने मंजूर की है। और दूसरी बात ये कि हम थोड़े दिनों के बाद एक वफ्द जान मेजर के पास भी भेजने वाले हैं सिलसिले में। बहुत जलील हो तुम लोग। अरिश्मा भन्ना कर उठने लगी। तुम हम पे क्यों गुस्सा दिखा रही हो? अल्बाम ने इसका हाथ पकड़ के उठाया। हम तुम्हें नेशनल असम्बली के मेंबर दिखाई दे रहे हैं या कोई सफ़ीर या वज़ीर किस्म की शय कि तुम्हारी बात हुकूमत तक पहुंचा दें? ये सब लोग तो किसी जगह भी अक़लियत में होते हैं। जब तक अक्सरियत अपने आप को नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता। मेरा मतलब आवाम से है। खुदाया, साले ने कानों पर हाथ रखा। सच सच बताओ रुश्मा, क्या तुम्हारा कोई थीसिस किस्म की चीज़ लिखने का इरादा है? लिखने का इरादा तो नहीं, देखना अब लिखूँगी। इसलिए तो मैं वहाँ किसी को बताती नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। या खुदा, साले कराह कर रहे क्या? तुम इस कदर गद्दार किस्म की शय होगी, हमें पता नहीं था। हमने तो सुना था कि जो लोग बाहर होते हैं लोगों में वतन की मोहब्बत वतन में रहने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। तुम लोगों की हरकतें बहुत अच्छी हैं। आए दिन तो पाकिस्तानी हीरोइन के केस में पकड़े जाते हैं, फिर अखबार में इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगती हैं और अंग्रेज़ कहते हैं कि पाकि तो ऐसी हरकतें करते हैं। तुम क्या हमसे अलग हो? तुम्हारी पहचान भी तो यही वतन है। फ़ारस ने तहम्मुल से समझाया। बस फ़ारस, बेकार की बातें नहीं करो। मैं जिस मुल्क में रहती हूँ, जहाँ का दिया खाती हूँ, बस वही मेरी पहचान है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसने बात ख़त्म की तो सभी चुप हो गए। शादी में 5-6 दिन रह गए थे। शहबाज भाई का कोई पता नहीं। फ़ारस ने कहा, ये कौन हज़रत हैं? सबसे बड़े ताए जान के 3रे नंबर के बेटे, आजकल शिकार पर गए हुए हैं। हाँ, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। शायद 1-2 साल पहले हमारे घर भी आए थे। बस तुम्हारा और उनका टाकरा ना हो जाए, फ़ारस ने कहा, क्योंकि अगर एक मशरिक़ है तो दूसरा मगरिब। मुझे क्या किसी से, कोई भी होता रहे। उसने लापरवाही से कहकर अंदर जाने को कदम बढ़ाए कि एकदम से सर पकड़ के बैठ गई। बड़ी ज़बरदस्त चोट लगी थी। देखकर नहीं चला जाता? आने वाले ने भिन्ना कर कहा। चल कौन रहा था? मैं तो खड़ी हुई थी। क्या आप खुद चल कर मुझसे टकराए हैं? क्या मतलब? वो शख्स चिरागपा होकर बोला, मैं इतनी दूर से इसलिए आया हूँ कि आपसे टकराऊँ। और तुम फ़ारस? वो फ़ारस की तरह मुड़ा। तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? इस फिल्मी सीन पर हंसी आ रही है। फ़ारस हंसी रोकते हुए बोली, ये फ़ायज़ा फुप्पो की बेटी अरुश्मा है और अरुश्मा ये शहबाज भाई हैं। एक दफ़ा लंदन जा चुके हैं। अच्छा, तुम शहबाज हो? उसने शहबाज को लंबा किया। लग तो नहीं रहा। तुम बहुत बदल गए हो। अरुश्मा को बड़ा शक था इसके शहबाज अली होने के सिलसिले में। ख़ास तौर पर तुम्हारे मुंह पर इंसाइक्लोपीडिया का इजाफ़ा खासा लर्जा खेस है, क्योंकि सच शहबाज ये इतनी खूनखार लग रही हैं कि अच्छे भले आदमी को तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में शुबा हो जाए।
जैसे मुझे शुबा किया। यकीन हो रहा है, मेरी मूंछों को कुछ मत कहना। उसने वार्निंग दी। जब अमेरिका में हमें खाने के लिए घी नहीं मिलता था तो इस वक्त भी मैंने वहाँ की मेमों से देसी घी की मालिश करवा कर बड़ी मुश्किल से बढ़ाई है, उसने शरारत से कहा। और ये कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि वहाँ की गोरियाँ बरसात के मौसम में तुम्हारी मूँछों पर झूला झूलती होंगी। तुम बहुत बदतमीज़ हो। एक तो मुसलसल तुम करके बात कर रही हो, फिर फजूल रिमार्क्स दे रही हो। तब तुम कौन सा आप जनाब करके बात कर रहे हो? हालांकि मैं मेहमान हूँ, तुम्हें मेरा एहतराम करना चाहिए, चाहे तुम जूते मारो। शहबाज ने जूते के तस्मे खोलते हुए कहा। और हम तुम्हारा एहतराम करते रहें? कमाल है जनाब। कौन जूते मार रहा है? तुम। और कौन? वो भी पानी में भिगो भिगो कर। उसके कहने पर पाँव पटकते हुए अंदर जाने लगी। ए, तुम कहाँ जा रही हो? फाइक ने उसका रास्ता रोका। शहबाज भाई वैसे ही तुम्हें छेड़ रहे थे, मेरा और इनका छेड़छाड़ का क्या रिश्ता है? कहते वो भूल गई कि मजाक उड़ाना इसी ने शुरू किया था। रिश्ता होता नहीं, बनाया जाता है। फाइक ने टांग अड़ाई। तुम तो चुप रहो तरबूज। उसने साले को घूरा। एक तो खुदा जाने अरिश्मा को हर एक की शक्ल देखकर फल क्यों याद आने लगते थे। कभी साले से तरबूज नज़र आता, बड़ी ताई अम्मा कोई तुर्श सा आम, खुद फारस की स्मार्टनेस को वो केले से तशबीह देती। सब लोगों का मुतफ़िका ख्याल था कि वो ज़ोर कसरे बरमंगम से ठेला लगा कर बैठती होगी या फिर पिछले जन्म में ही कोई फलों की आड़ती रही होगी। तुम लोग बातें ही करती रहोगी, इन मछलियों को भी देख लो जो जीप में पड़ी हुई हैं। आप तो शहबाज भाई तीतर के शिकार को गए थे, क्या तीतर मछलियाँ बन गईं? नहीं यार, बस वापसी में प्रोग्राम बन गया। शहबाज ने जमाई रोकी। फारस ने सारे रेवड़ को उठा लिया और मछलियाँ साफ़ करने बैठ गई। इसे खाएंगे कब? सबकी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। अभी मसाला लगा कर रखेंगे, सुबह इसे आग पर भून कर खाएंगे। फारस ने सारा प्लान सबके गोशो गुजार किया। इनको देखो, ये शायद अभी तक मछलियों को तीतर ही समझ रही हैं। क्यों, क्या मछलियाँ आग पर भूनी नहीं जाती? मैंने खुद कई जगह देखा है, बाकायदा जंग छिड़ के और सब मछलियों के दुम पकड़कर एक दूसरे को घुमा घुमा कर मारने लगे। अगर शहबाज अपनी मछलियों का ये हाल देख ले, आइंदा शिकार करना छोड़ते। अरुष्मा ने बाआवाज़े बुलंद अफसोस का इजहार किया। बल्कि शिकार तो दूर की बात है, वो फिशरमैन बिल्कुल ही कंगाल हो जाएगा जहाँ से ये मछलियाँ हर महीने आती हैं। कहने के बाद उसकी नज़र सामने शहबाज पर पड़ी, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने जो दौड़ लगाई तो सीधा बड़े ताया अब्बू के कमरे में जाकर ही दम लिया। अहमद की शादी का हंगामा शुरू हो चुका था। मायूं वाले दिन शहबाज को अरिश्मा से बदला लेने का मौका मिल गया था। उपटन लगा लगा कर उसका गुलाबी चेहरा वैसे ही पीला हो रहा था। उस पर इसने तेज़ चीखता हुआ पीला रंग पहन लिया। ऐसी गंवार लड़की, कौन कहेगा ये लंदन से आई है? ये रंग देख देख कर शहबाज के सर में दर्द होने लगा। आखिर ज़ब्त नहीं हो सका तो थोड़ी देर के बाद इसने मुलाजिम से गन्ने का शरबत मंगवा कर पैक करवा कर इसके पास भिजवा दिया और क़यामत का इंतज़ार करने लगा। उसी दिन इसे पता चला कि क़यामत और सौर इसराफील क्यों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। अच्छी तरह चीखने और उसे बहरा करने के बाद उसने जग इसके सामने पटका। शुक्र था सर पे नहीं तोड़ा। मकसद क्या है आखिर तुम्हारा? पता है, जब हमारे यहाँ लोगों को पीलिया हो जाता है ना, तो डॉक्टर यही तजवीज़ करते हैं। आखिर मेडिकल के फ़ाइनल ईयर में हूँ, इतना तो जानता ही हूँ, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। तो अरुष्मा ने जलकर कपड़े ही तब्दील कर लिए। देखा कितना फ़ायदा हुआ एक ही खुराक में, वो मुस्कुरा कर बोला तो अरुष्मा की जान जल के रह गई। उसने कपड़ों पर हसरत भरी नज़र डाली। शहबाज को शोलाबाज निगाहों से घूरा। मेहंदी वाले दिन सब लोग मीना बाज़ार मेहंदी लगवाने जा रहे थे। दिल तो इसका भी चाह रहा था, लेकिन तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए जाने का इरादा इसने मुलतवी कर दिया। तुम लोग चली जाओ, मैं घर में ही फारस से लगवा लूँगी, उसने दवाई खाते हुए कहा। बड़ी ताई जान आ गई और उन्होंने ज़बरदस्ती उसे सबके साथ भेजा और फारस को हदायत भी कर दी कि वापसी में इसका डॉक्टर से चेकअप करवाती हुई लाना। वो बाहर आई तो सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। वो अफरा तफरी में जाके बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और हवा से बातें करने लगी। लगता है हम मीना बाज़ार जाने के बजाय खुदा के हजूर जा रहे हैं। एल्बाम बुड़बुड़ाई। गाड़ी की रफ्तार बजाय कम होने के मुस्तकिल बढ़ता देखकर सभी खौफसदा हो गए। अरुष्मा ने पिछली सीट से उचक कर
झांकने की कोशिश की तो इससे शहबाज के चमकते हुए बाल नजर आए। पायलट साहब, ये सड़क है, कोई रनवे नहीं। अगर आपका ज़मीनी जहाज़ क्रैश हो गया तो हम सब बदरूहें बनकर आपको ड्राया करेंगे। तुम भी जा रही हो? शहबाज ने उसकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा। मैंने तो सुना था तुम नहीं जा रही हो। ये मेरा ज़ाती मामला है। उसने होंठ सकोड़े। प्लीज़ शहबाज भाई, आहिस्ता चलाइए। अरुष्मा को यहाँ की चीज़ें भी दिखानी थी। आप लोग घुमाने क्या लेकर जाते? जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी नहीं देखने दे रहे। जिनको यहाँ के लोग नहीं पसंद, उन्हें यहाँ की चीज़ें क्या पसंद आएंगी? शायद शहबाज को भी खबर मिल गई थी। ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं, मैं बेकार की बहस के मोड में नहीं हूँ। हाँ, इस वक्त तो तुम कार में बैठी हो, बल्कि लेटी हुई हो। साले ने उसके नीम दराज होने पर एतराज़ किया तो वो सीधी होकर बैठ गई। यहाँ इतनी नुक्ताचीनी क्यों होती है? इसलिए कि हमारे मुल्क में चीनी की पैदावार बहुत ज़्यादा है, बल्कि बहुत सारी चीनी तो हमने एक्सपोर्ट कर दी, इसलिए अब हम लोग कड़वे होते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुक गई और सब उतरकर मीना बाज़ार की तरफ जाने लगी, मगर वो वहीं बैठी रही। इसको अपनी जगह जमे देखकर वो इसकी तरफ आ गया। सुनो, अगर मेहंदी लगवानी है तो नीचे उतर के जाना पड़ेगा। यहाँ आकर आपको कोई मेहंदी नहीं लगाएगा। मुझे नहीं लगवानी, वो बेजारी से बोली। अच्छा चलो, जब तक सब मेहंदी लगवा रही हैं हम आइसक्रीम खाते हैं, उसने शौक़ी से कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, उसने कहा ही था कि एकदम फ़ारस सीढ़ियाँ उतरती नजर आई। अरुष्मा, आओ ना यार, वहाँ कहाँ रुक गई? वो वहीं सीढ़ियों पर से उसे हाथ हिला हिला कर बुलाने लगी। शहबाज ने एकदम गाड़ी स्टार्ट की और जन से भगा के ले गया। ये क्या किया? वो बुला रही थी। वो थोड़ी नाराज़गी से बोली। बुलाने दो। वो लापरवाही से बोला। थोड़ी देर के बाद उसने बुटीक के सामने गाड़ी रोकी। मजबूरन उसे भी उतरना पड़ा। उतरने पर ही क्या मौकूफ़, इसे एक भारी काम वाला सूट भी पसंद करना पड़ा। अरुष्मा, तुम ये शादी के दिन पहन लेना। वो अपनी आदत के मुताबिक कहना चाहती थी कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? जब कहने के लिए मुंह खोला तो कुछ कह ना सकी। वो इन आँखों की कहानी से डरती थी या फिर पढ़ना ही नहीं चाहती थी। कहाँ जाना है? मीना बाज़ार ले चलूँ या फिर घर जाना है? वो यूँ संजीदगी से बोला जैसे वो 2 लम्हे उनके दरमियान आए ही ना हों, जिसने इसकी पूरी हस्ती को हिला के रख दिया था। मर्ज़ी है, उसने जल कर कहा। अरे, वो इसका सुर्ख चेहरा देखकर हंसा। मेरी मर्ज़ी पर बाद में अमल करना, फ़िलहाल तो अपनी मर्ज़ी बताओ। शहबाज, उसने गुस्से से इसे देखा। मैं बदतमीज़ी पसंद नहीं करती। क्या मैंने कुछ कहा है? अरिश्मा का दिल चाह कह दे, इन आँखों की मौजूदगी में कुछ कहने की ज़रूरत भी बाकी नहीं है, लेकिन बोलने से उल्टा रिकॉर्ड लगता। खामोशी से क्योटिक्स खुरचती रही। फिर वो इसे घर ही ले आया। सब शहबाज पर चीखने लगे कि तुम अरिश्मा को लेकर कहाँ चले गए थे? भाई, इन्हें कोई सूट वगैरह लेना था, ये लो अपना सूट। उसने पैकेट उसकी तरफ उछाला, जिसे रास्ते ही में बसद एहतराम कैच कर लिया गया। सूट देखकर सब चीख पड़े। कितना हसीन सूट पसंद किया अरुष्मा तुमने, किस दिन पहनोगी? बारात में? इसके बजाय शहबाज ने जवाब दिया। लेकिन बारात और वलीमे का सूट तो तयम्मा बना चुकी हैं। फ़ारस को ख्याल आया। तो क्या हुआ, इंसान को अपनी पसंद का सूट पहनना चाहिए, साले ने कहा। फ़ारस, मैं तयम्मा का बनाया हुआ सूट ही पहनूंगी। उसने पिछले सारे लम्हों के बदले लिए। यह सूट तो मैंने वैसे ही लंदन ले जाने के लिए ख़रीदा है, उसने कहा तो सबने सुकून का सांस लिया। सबको पता था अगर वो ताई जान का पसंद किया हुआ कपड़ा नहीं पहनती तो वो नाराज़ हो जाती। बारात वाले दिन उसने सबसे आसान काम संभाल लिया, यानी इस्त्री करने का। फ़ारस ने चूँकि ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, इसलिए उसके ज़िम्मे सबका मेकअप करना और बकौल साले यूँ हेयर स्टाइल बनाना था कि बिल्कुल पाकिस्तान से आई हुई चुड़ैलें मालूम हो। सबके सूट इस्त्री करने के बाद उसने अपना सूट प्रेस करने के लिए निकाला ही था कि अहमद भाई ने उसे आवाज़ दे ली। अरुष्मा प्लीज़ 1 मिनट को इधर आओ। जी। वो उनके पास आ खड़ी हुई। वो इसे अपने साथ लिए बिल्कुल दूसरे सिरे पर चले गए। ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? ओफ़ो, इसका दिमाग घूम गया। अहमद भाई, ईमान से अगर आप आज के मैच के मैन ऑफ द मैच नहीं होते तो मैं आपको बताती कि आप कैसे लग रहे हैं। इतनी सी बात पूछने के लिए इतनी दूर मुझे लेकर आए। वो भागती हुई कमरे में दाखिल हुई, लेकिन इस्त्री उठाते ही उसे झटका सा लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि इस्त्री वो ऑफ करके गई थी। अब ना सिर्फ इस्त्री ऑन थी, बल्कि शान से उसके कपड़े पर रखी हुई थी।
इसने डलते डलते इस्त्री उठाई तो चिपका हुआ कपड़ा भी साथ उठ के आ गया। इतना खूबसूरत कीमती सूट बर्बाद होके रह गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे रोते देखकर सब उसकी तरफ लपके। सबसे पहले फारस की नज़र पड़ी। ओ खुदाया, उसने ताज़ियती लहजे में ऐलान किया, ये सूट कैसे जल गया? मुझे नहीं पता। उसने आंसू साफ किए। फिर फर्दन फर्दन सब ने ही उसे अपने सूट पेश किए कि वो उनका पहन ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अरे, फारस चुटकी बजा कर बोली, वही वाला सूट पहन लो जो उस दिन लेकर आई थी, ज़बरदस्त लगोगी। उसके कहने पर अचानक ही उसके जहन में रोशनी सी लहराई। लेकिन बग़ैर किसी सबूत के शहबाज का नाम किस तरह लेती? चुपचाप इसने वही सूट निकाल कर पहन लिया। शहबाज किसी काम से अंदर आया तो इसकी सारी तवज्जो कपड़ों पर मरकूज़ हो गई। अरे, ये वही सूट है ना जो तुमने कल ख़रीदा था? अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अरिश्मा चोर सी बन गई। मजबूरी थी, पहनने पड़े, वरना मुझसे इतने भारी कपड़े नहीं संभलते। अच्छा अच्छा, वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था, शायद अपनी जीत पर। मैं ये सूट इसके मुंह पे मारूंगी। उसने पक्का इरादा कर लिया, लेकिन अमल नहीं कर सकी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए, सब अपने अपने घरों को लौटे तो उसने भी जाने का सोचना शुरू कर दिया। अब्बू अम्मी के 2-3 फ़ोन आ चुके थे। वो दोनों इसे मिस कर रहे थे। यूँ भी उसकी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो चुका था। तो गोया तुम सचमुच चली जाओगी? अलबाम ने सब सोल्दगी से कहा। वो अपने मुखालफाना बल्कि गद्दाराना ख़यालात के बावजूद सबको अजीज़ हो गई थी। यहाँ आती रहा करूँगी, उसने तसल्ली दी। गोके से ख़ुद भी पता था कि बार बार आना इतना आसान नहीं। अब्बू अच्छी पोस्ट पर थे, इसके बावजूद लंदन में रहकर ख़ुद को इस्टेब्लिश करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। जब तक वो लोग कस्बे में रहे, अम्मी कुछ ना कुछ बचत कर ही लेती थी। लेकिन जब से उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, अम्मी ने भी लंदन में ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था और यूँ खर्च दुगना हो गया था। हालांकि उसने मना भी किया था। इसके साथ ही इसकी दोस्त सारा थी और इन दोनों का इरादा था कि मिस्टर स्मिथ के पास जो एक कमरा है वही किराए पर ले लेंगी और हर वीकेंड पर वो ट्रेन से आ जाया करेंगी। लेकिन अम्मी अभी तक पुराने ज़माने ही की बातें करती थीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ना वो इसका किसी दूसरे के पास रहना गवारा कर सकती हैं, ना ही इसको ट्रेन के सफ़र की इजाज़त दे सकती हैं। अब भी यही सब बातें हो रही थीं और अच्छे भले माहौल पर अफसुर्दगी का रंग तारी हो गया था। काश हम तुम्हें रोक सकते और ऐसी जंजीर पहना सकते कि तुम लंदन वंदन सब भूल जाती। खैर, ये तो मुमकिन ही नहीं। वो मुस्कुराई। ऐसी जंजीर पहनने के बावजूद भी उसने सोचते हुए नज़रें उठाईं। शहबाज की निगाह उसी पर मरकूज़ थी। उसने इधर उधर देखा, कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो उठकर बाहर आ गई। बाहर चांद की ठंडी रोशनी फैली हुई थी। वो कितनी देर वहाँ खड़ी रही। वो सब एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां थे। एक महीना एक पल में खो गया था। ड्राइविंग शहबाज कर रहा था और खिलाफ मामूल बिल्कुल खामोशी से। शहबाज भाई, आप बहुत चुप चुप लग रहे हैं। आखिर फारस ने पूछ ही लिया। नहीं तो? उसने एक नज़र उन सब के चेहरे पर डाली, दोबारा स्टीयरिंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। और आज तो आप लोग लड़े भी नहीं। इस बात पर हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, या रुश्मा का? मर्ज़ी है, वही मुख्तसर जवाब, इससे पहले कि सब रुश्मा के पीछे पड़ते कि कहीं लड़ाई तो नहीं होगी। अचानक ही ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया। सभी परेशान होने लगे। ये क्या हो गया शहबाज? फारस ने परेशानी से कहा। कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? यार, जहाँ पर तुम लोग बैठी हो वहाँ पर मैं, वैसे ठहरो, मैं पता करके आता हूँ। शहबाज नीचे उतरने लगा तो सब ने ही इसे रोक लिया। नहीं जाओ, वो देखो मुझे पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। क्या मुसीबत है? हाथ तो छोड़ो। नहीं जा रहा हूँ। इसका जुमला अभी मुंह में ही था कि एकदम रुश्मा की चीख ही निकल गई। अब आपको क्या हुआ मोहतरमा, जो चीखें मार रही हैं? शहबाज ने बेजारी से कहा। इसके मुंह से कुछ नहीं बोलने पर इसने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो सारी बात उसकी समझ में आ गई। कुछ पुलिस वाले साइकिल सवार को बेदर्दी से मार रहे थे और वो मुस्तकिल हाथ जोड़ जोड़ कर कुछ बोल रहा था। बाकी पुलिस वाले जल्दी जल्दी सारी ट्रैफिक एक तरफ कर रहे थे। अरुष्मा, शहबाज ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या फीलिंग्स को नॉर्मल रखो, ये हमारे यहाँ का नॉर्मल दस्तूर है। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई जो तुम यूँ होश व हवास खो रही हो? शायद कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वहाँ आ रहे होंगे, इसके लिए सारी तैयारियाँ हो रही होंगी। क्या सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए? उसके लहजे में बेयकीनी थी। हाँ, शहबाज ने मुख्तसरन जवाब दिया। क्या इसके लिए इस बेचारे को इतना मारना ज़रूरी था?
फारस के लहजे में भी अफसोस था। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती अरुष्मा, लेकिन वो आदत बन जाती हैं। ये इन लोगों की आदत बन चुकी है कि जो इनकी बात ना माने वो इसके साथ ऐसे ही सलूक करें। ट्रैफिक का हजूम ज़रा कम हो जाए तो मैं इसके पास जाकर पता करता हूँ। शहबाज प्लीज़ कोई पंगा मत लेना, हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, अहमद ने कहा। अरुष्मा की फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। उसके कहने पर अरुष्मा को भी होश आया, वरना इसका जहन अभी तक सिर्फ इस हंगामे में उलझा हुआ था। थोड़ी देर के बाद कारों का झुंड बरामद हुआ। अरुष्मा ने गिनना शुरू किया, 3-4 मर्सिडीज़, इसके पीछे पायलट मोटरसाइकिलें। उफ खुदाया, तुम्हारे मुल्क में कितनी दौलत है शहबाज। पता नहीं वो तंज कर रही थी या संजीदगी से कह रही थी, वो अंदाज़ा नहीं लगा सका। थोड़ी देर के बाद ट्रैफिक का दबाव कम हुआ तो शहबाज ने गाड़ी टर्न की। कहाँ जा रहे हो शहबाज? 1 मिनट यार, इधर आओ। शहबाज ने गाड़ी साइकिल सवार के पास ले जाकर रोकी। तुम्हारा क्या मसला है दोस्त? इसके कहने पर आदमी ने चौंक कर नज़रें उठाईं। इसके हाथ में खून की थैली थी। सुर्ख रंग के खून की थैली धूप की शिद्दत से कुमलाकर काले रंग की सी हो रही थी। मुझे हॉस्पिटल पहुंचना था, मेरी बीवी। अच्छा अच्छा, शहबाज इसका मसला समझ गया। अहमद, तुम ड्राइविंग कर लोगे? उसने चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। जिस हॉस्पिटल में इसकी बीवी एडमिट है वहाँ मेरे दोस्त वगैरह हैं, हो सकता है मैं किसी काम आ जाऊँ। लेकिन शहबाज, अहमद ने इसे रोकना चाहा। तुम्हें पता है सिर्फ 10 मिनट रहते हैं और इतने हजूम में रैश ड्राइविंग करना, यार सोचो तो सही, कर लोगे? वक्त पड़े तो इंसान सारे काम कर लेता है। वो नीचे उतर आया। खुदा हाफिज़ अरुष्मा, मैं फ़ोन करूँगा, इंतज़ार करना। उसने इसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा। इसने सर उठाकर उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखें जो कहानियाँ सुना रही थीं, रवैया इसके बिल्कुल बरक्स था। रुख मोड़कर बाहर देखने लगी। हकीकत में उसे शहबाज पर शदीद तरीन गुस्सा आ रहा था। हमारे शहबाज भाई ऐसे ही हैं, अलबाम ने अफसोस से ऐलान किया। ताया अब्बा की सारी दौलत इन्हीं कामों पर लुटाएंगे। कसम से मुझे तो यूँ लगता है कि शहबाज भाई MBBS करने के बाद हम दर्द मतब दवाखाना जैसी किस्म की कोई चीज़ बनाकर बैठ जाएंगे। सच है रुश्मा, हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जैसे ये हजरत हैं। अलबाम ने उसे यूँ राजदारी से बताया जैसे कह रही हो कि जैसे शहबाज पागल हैं। वैसा कोई भी नहीं, बस अब चुप भी कर जाओ। अहमद ने दोनों को डांटा। तुम लोग तो इसके पीछे ही पड़ गई हो। ट्रैफिक दोबारा से जैम हो गया था और आगे पीछे हर तरफ से हॉर्न की आवाज़ों ने आसमान सर पे उठा लिया था। अरुष्मा ने घड़ी देखी, फ़्लाइट का टाइम गुजर चुका था। इसने कानों पर हाथ रखा और सर सीट की पुश्त से टिकाकर आराम से लेटने के अंदाज में बैठ गई। अब सिर्फ एक आखिरी उम्मीद रह गई थी कि जिस तरह सारे काम यहाँ देर से होते हैं वैसे ही शायद फ़्लाइट भी लेट हो जाए। ये और बात थी कि वो आज जाना भी नहीं चाह रही थी। शहबाज रात गए घर पहुंचा तो थकन से निढाल था। इसका इरादा यही था कि घर में घुसते ही बिस्तर संभालेगा, लेकिन कमरे में दाखिल होती इसकी सारी थकन हैरत आमेज़ खुशी में बदल गई। सामने अरुष्मा सोफे पर विराजमान थी। हेलो हेलो, शहबाज हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता नहीं था कि नेकियों का समर इतनी जल्दी भी मिल सकता है। शहबाज, बदतमीज़ी नहीं करो। तुम्हारे मुंह पर बस छूटते ही यही अल्फाज होते हैं कि बदतमीज़ी नहीं करो। इसके अलावा भी कुछ बोल लिया करो। तुम्हारे जाने के बाद इतने सारे फजूल से दिन रात कैसे गुजरेंगे, जैसे पहले गुजरते थे। पहले की बात और थी, अब की बात और है। बल्कि शायद मोहब्बत हो जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। मसलन उसका लहजा तैश दिलाने वाला था। मसलन यही, पहले मुझे आसमान नीला दिखाई देता था, अब काला दिखाई देता है। ज़मीन का रंग सुर्ख हो गया है। हर शय में आप ही आप नज़र आती हैं। इसके अलावा कुछ और सुनना पसंद करेंगी? नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। मुझे भी तुम्हारी बात का यकीन आ गया है कि मोहब्बत हो जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। जैसे तुम पहले थोड़े थोड़े से पागल लगते थे, अब इसका ट्रिपल हो गए हो। कहकर निकलने को थी कि एकदम शहबाज ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। गई क्यों नहीं? फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। उसने नज़रें चुराई। झूठ नहीं बोलो। क्या बताऊं? उसने तीखी नज़रों से उसे देखा। जिन सवालों के जवाब मालूम हो वो सवाल पूछने का फ़ायदा। अब की दफ़ा उसे रात की फ़्लाइट मिली थी। शुक्र है खुदा का, फारस ने कहा। अब पहली दफ़ा की तरह कोई ड्रामा नहीं होगा।
ड्रामा इतना होता नहीं जितना लोग ड्रामा करते हैं, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश। उसने शहबाज को आते देख लिया था, इसलिए ज़ोर से बोली, लेकिन खिलाफ मामूल उसने कहा कुछ नहीं, खामोश रहा। वापस लंदन पहुंची तो अम्मी ने खूब खिंचाई की कि पाकिस्तान से आने का क्या दिल नहीं चाह रहा था। नहीं, दिल तो वाकई लग गया था। उसे अभी तक वहाँ की शरारतें याद आ रही थी, लेकिन रहने के लिए तो वो भी सोच भी नहीं सकती थी। इसका ख़्याल था कि कभी 3-4 सालों के बाद पाकिस्तान का चक्कर लगा लिया करेगी, अगर बजट ने इजाज़त दी तो। फ़िलहाल ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। क्या तुम्हें पाकिस्तान पसंद नहीं आया? अम्मी ने उसके चेहरे से मुतरश्शि बेजारी देख कर कहा। सब ठीक ही है, होंठ सकोड़ कर बोली। क्या मतलब? अम्मी ने चौंक कर उसे देखा। क्या तुम्हें पाकिस्तान पसंद नहीं आया? कम अज़ कम मुझे तो बिल्कुल नहीं, और वो पाकिस्तान भी नहीं जिसके किस्से आप मुझे सुनाया करती थी। वहाँ दहशत गर्दों का राज है, कोई अपने घरों में भी महफूज नहीं, बल्कि एक दफ़ा तो बड़े ताया अब्बा अगवा होते होते बचे। इसके अलावा अहमद भाई के एक दोस्त ऐन अपनी शादी के दिन शरपसंदों की फायरिंग से ज़ख्मी हो गए। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, कानून नाम की वहाँ कोई शय नहीं। ख़ुद हमारे कज़न्स वगैरह ने कितनी मरतबा ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी की, कोई वहाँ पूछने वाला ही नहीं। अम्मी, आपने कभी जंगल के कानून का सुना है? बस वहाँ यही चीज़ चलती है। अम्मी उसकी बातें सुन सुनकर परेशान हो गई। उन्होंने तो सोचा था कि एक दफ़ा जाकर पाकिस्तान देख कर आएँ, फिर वहीं इसका रिश्ता वगैरह भी तय कर देती। इन्हें अब दियारे गैर में रहने का पता चल रहा था। उनकी तो खैर एक ही बेटी थी, लेकिन उनके जिन जिन जानने वालों की 3 या 4 बेटियां थीं। उनकी परेशानी फजों तर थी। या तो हर बेटी की शादी पर इन लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ता, या फिर लंदन ही में जिस तरह का रिश्ता मैसर होता उसी से शादी कर देते। उनकी तो एक ले देकर अरुष्मा ही थी, गैरों में देते उनका दिल डरता था। इसलिए वो चाह रही थी कि ख़ानदान ही में इसे दें, लेकिन इसकी बातें तो आसमान में सुराख कर रही थी। खैर, उन्होंने सोचा अभी छोटी भी है, बाद में खुद ही अकल आ जाएगी। आने वाले दिन कई खुशियों के पैगाम लेकर आए थे। ताई अम्मी ने ख़त में इसके रिश्ते का इरादा ज़ाहिर किया था, और अम्मी अब्बू की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। इसके रिश्ते की बात चल रही थी। अम्मी और बड़ी ताई काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें करती रहती। अम्मी, इतनी देर आप लोग क्या क्या बातें करती हैं? एक दिन चिढ़कर अरुष्मा ने कह ही दिया। बहुत सारी बातें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, रिश्ते नाते ऐसे ही एक दिन में तय नहीं हो जाते। तो क्या मतलब है, साल हर साल लग जाते हैं। ओफ़ो अरुष्मा, अम्मी चिढ़ गई, तुम हर मामले में मत बोला करो, पता भी है इन सब मामलात में जूतियाँ घिस जाती हैं। अच्छा, वो हंस पड़ी। आप जूते घिसने के बजाय फ़ोन घिसे, बिल आएगा तो अब्बू जान ख़बर लेंगे। तो तुम्हारे ही रिश्ते की बात की जा रही है, तो क्या मतलब, अब्बू जान के रिश्ते की बात करेंगी? उसने अब्बू को खड़े देख लिया था, इसलिए शरारत से बोली। अरुष्मा, तुम बहुत शरीर हो गई हो। अब्बू ने उसके सर पे चपत मारी। क्या हुआ, बात कहाँ तक पहुँची? अब्बू अम्मी से पूछने लगे तो कमरे से बाहर आ गई। वो लोग फ़िलहाल सिर्फ बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि घर की बात है, शादी 1-2 सालों के बाद करने के लिए कह रहे थे। ठीक है, अब्बू ने रजामंदी दे दी, जब तक शहबाज भी डॉक्टर बन जाएगा। हाँ ठीक है, शाम को फ़ोन आएगा तो आप बात कर लीजिएगा। ओके, अब्बू खड़े हो गए। फ़ोन ख़राब था और इसका दिल शहबाज से बातें करने को चाह रहा था। खैर, अगले दिन कॉलेज से वापसी पर कर लूँगी, उसने सोचा। दूसरे दिन कॉलेज से वापसी पर वो पीसीओ चली गई। शुक्र था कि शहबाज के कमरे का फ़ोन नंबर इसे याद था। असल में इसके इतने फ़ोन आते थे कि तंग आकर सबने फ़ोन इसके कमरे को बख्श दिया था। हेलो, रिसीव शहबाज ने ही किया था। हेलो, उससे कुछ बोला ही नहीं गया। किस लिए फ़ोन किया था? शहबाज ने शरारत से कहा। पता नहीं, वो हौले से बोली। किस बात का पता नहीं, फ़ोन करने का या बातें करने का? शहबाज ने उसे तंग किया, लेकिन वो चुप रही। अच्छा ये बताओ, मैं याद आ रहा था इसलिए फ़ोन किया था। पता नहीं, अजीब लड़की हो, कुछ पता नहीं के सिवा कुछ पता भी है या नहीं। वो अब झुंझलाने लगा था। यहाँ तो तुम्हारी बहुत ज़ुबान चलती थी। ज़ुबान तो अभी भी चलती है। अच्छा, अब समझा, शर्मा रही होगी। खामख़ा में मुझे शर्माना नहीं आता, तेवरी चढ़ा कर बोली। उफ़, जी चाह रहा है रिसीवर सर पे दे मारूं, अपने नहीं तुम्हारे। क्यों, क्या मैं फ़ालतू नज़र आ रही हूँ? वो चीखी। जी नहीं, फ़ालतू तो मैं हूँ जो इस वक्त सख्त सर्दी और अंधेरी रात में आपके फजूल बातें सुन रहा हूँ।
कोई अच्छी बात नहीं कर सकती? अच्छा, वो हंस पड़ी। सॉरी, दिन रात के इस फ़र्क का ख्याल ही नहीं रहा। सब सो रहे हैं। जी हाँ, बस एक उल्लू जाग रहा है। शहबाज, सीरियस हो जाओ, वक्त ख़त्म हो गया था। उसने सिक्का निकालकर स्लॉट में डाला और दोबारा फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम कहाँ से फ़ोन कर रही हो? पब्लिक कॉल ऑफिस से। हमारा फ़ोन ख़राब है। कब तक सही हो जाएगा? शाम तक सही हो जाएगा। बस ठीक है, मैं रात को फ़ोन करूँगा। मुझे रात को नींद बहुत आती है, मैं नहीं जागूंगी। सही है, तुम्हारी सज़ा यही है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अगर आधी रात को फजूल बातें सुननी पड़ें तो कितना गुस्सा आता है। कौन फजूल बातें कर रहा है? एक तो पैसे खर्च करके फ़ोन किया, ऊपर से बातें सुना रहे हैं। बातें? कौन सी बातें? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। बातें होंगी रात को। बस फिर अपनी फुप्पो जान से ही बातें कीजिएगा, मैं रिसीव नहीं करूँगी। धमकी? वो हंसा। अभी पाकिस्तान में होती तो बताता। पाकिस्तान? वो हंसी। शायद 4-5 सालों के बाद ही आना हो। क्या मतलब? शादी 2 साल के बाद है और तुम आओगी 4 साल के बाद? निकाह के बाद रुखसती में इतना लंबा वक्फा मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब? वो झिझक कर बोली। मेरा मतलब है कि शादी के बाद तुम लंदन ही में आ जाओगे। क्यों? क्या मैं घर दामाद बन रहा हूँ? इसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तुम सीरियस नहीं होते शहबाज? हम शादी के बाद पाकिस्तान में तो नहीं रहेंगे। फिर कहाँ रहेंगे? बहरे ओकियानोस के किनारे या बहरुल काहिल के पास? चलो, जहाँ तुम पसंद करो। हम तो यार की रज़ा में खुश रहने वाले लोग हैं। सच? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम लंदन में ही सेट हो जाएंगे ना? क्या पागल हो गई हो? शहबाज को हकीकतन ख़तरे का एहसास होने लगा। पागल होने वाली कौन सी बात है? बुरा मान कर बोली। क्या लंदन में लोग नहीं रहते? रहते होंगे, क्यों नहीं रहते? तुम्हें पता है ना रुश्मा कि मैं किस तरह का हूँ। तो मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं और चला जाऊँगा। पहले मैं यही समझ रहा था कि शायद तुम इतनी सीरियस ना हो या हम लोगों को छेड़ने को कहती हो। मुझे तुम्हारा लहजा कतई पसंद नहीं आया। शहबाज, एक बात मेरी भी सुन लो। अगर तुम नहीं आ सकते, मुझसे भी तवक्को मत रखना कि मैं पाकिस्तान आऊँगी। कतई लहजे में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। पता नहीं बात इतनी बड़ी थी भी या नहीं, लेकिन दोनों जगह भौचाल सा आ गया। दूसरे दिन अब्बू ने उसे अपने कमरे में तलब कर लिया। तुमने शहबाज से क्या बातें की हैं? उनका लहजा खिलाफ मामूल संजीदा था। आपको पता तो है अब्बू। पाँव से कालीन में सुराख करती रही। इधर देखो मेरी तरफ। जी। उसने नज़र उठाई। क्यों परेशान कर रही हो बेटा? हमें भी और दूसरों को भी। वैसे कल शहबाज आ रहा है। अब्बू, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बात की है, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। शहबाज के आने से मेरा फ़ैसला बदल नहीं जाएगा। लेकिन क्यों बेटा? वो मुल्क तुम्हारी पहचान है। मेरी पहचान यही है अब्बू। यहाँ मैंने आँख खोली, तालीम हासिल की, यहाँ रहती हूँ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ, अगर वो मुल्क इतना ही अच्छा था फिर हम लोग लंदन क्यों आए? वहीं रहते, उसको तरक्की देते। हमने सारी ज़िंदगी यहीं गुजार दी और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ? उठकर बाहर आ गई। वो रात बहुत तवील थी। अगले दिन शहबाज को आना था और वो उसके आने से पहले किसी फ़ैसले पर पहुंचना चाहती थी। शहबाज, तुम्हें मेरी बात मानना होगी, उसने टहलते हुए सोचा। लोग मोहब्बत के पीछे तख्तो ताज छोड़ देते हैं, क्या तुम एक जगह मेरे लिए नहीं छोड़ सकते? वो हेथ्रो एयरपोर्ट पर ही उससे उलझ पड़ी। प्लीज़ अरुष्मा, मुझे परेशान नहीं करो। शहबाज बहुत उलझा हुआ था। मैं घर जाकर इत्मीनान से बातें करूँगा। शहबाज, घर जाकर मेरा यही जवाब होगा। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बच्चों जैसी ज़िद कर रही हो? मैं कर रही हूँ ज़िद? वो भड़क कर बोली। और जो तुम कह रहे हो उसे क्या कहते हैं? इसके लिए ज़िद के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ है तो बता दो। शहबाज ने उसके ज़िद्दी लहजे पर चौंक कर उसे देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और हाथ कांप रहे थे। वो अपने लहजे में अटल लग रही थी। अरुष्मा, गाड़ी कहीं और मोड़ लो, मैं अभी घर नहीं जाना चाहता। शहबाज ने कहकर सर सीट से टिका दिया। अरुष्मा ने एक नज़र उसे देखा तो उसे अफसोस भी हुआ। वो इतने लंबे सफ़र से आया था और उसने आते ही उससे उलझना शुरू कर दिया था। अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। इसने गाड़ी टेम्स के किनारे मोड़ दी। अंधेरा फैल चुका था, नियॉन साइन जलने लगे थे। पार्लियामेंट हाउस के ओकब से आती रोशनियाँ अजीब धुंधला सा तासुर पेश कर रही थी। वो लोग जिस गोशे में थे वहाँ वैसे भी सन्नाटा था। दोनों ही को अपना नुक्ता नज़र समझाने में मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। फिर मामला गर्म सूरत अख्तियार करने लगा।
लड़ाई अरुष्मा ने शुरू की थी, वरना शहबाज उसे धीरे से समझा रहा था। सारी दुनिया स्पेशलाइज करने लंदन आती है, अमेरिका जाती है, एक तुम्हें ही फजूल में हुब्बल वतनी के दौरे पड़ते हैं। तुम्हारे मुल्क में ना सेहतमंद लोगों की कमी है ना डॉक्टरों की, मेरी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तुम समझो तो अरुष्मा। मैं क्या समझूं? तुम क्यों नहीं समझते? तुम मुझे एक उल्टी बात समझाना चाहते हो, खुद एक सीधी बात नहीं समझ सकते। मुझसे लिखवा लो, मैंने जो पाकिस्तान का हशर देखा है, यकीन करो मेरी रूह थर्रा के रह गई। तो मुझे वहीं ले जाने की बातें कर रहे हो? अरुष्मा, हालात सदा एक जैसे कभी नहीं रहते, जंजीरें टूट रही हैं, पुराने निज़ाम बदल रहे हैं और इस बदले हुए निज़ाम में हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। वो मुल्क क्या तरक्की करेगा शहबाज, जहाँ पानी के गिलास भी जंजीरों में बांध कर रखे जाते हैं। उसने किसी किताब में पढ़ा हुआ जुमला कह दिया। मेरे सामने किताबी बातें मत करो। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जो आग आज तुम्हें बहुत दूर लग रही है, कल वो तुम्हारे दामन तक पहुँचेगी। इस वक्त पनाह के लिए पाकिस्तान मत आना। तुमने महज कस्मों की बातों को अपने जहन में जगह दे रखी है, गलत किस्म के इशू बना रखे हैं। तुम्हारी तरह मैं भी एक किताबी जुमला सुना सकता हूँ। आप ही के एक मगरिबी दानिश्वर का कौल है, जो बोलना नहीं जानता उसे बोलना सिखाओ, मगर इस तवक्को के साथ, जब वो पहली बार रवानी से बोलेगा तो सबसे पहले तुम्हें गाली देगा। जिसको लिखना नहीं आता उसे लिखना सिखाओ, मगर नफ्स की सामादगी के साथ, जब वो लिखना सीख लेगा तो सबसे पहले तुम्हारे कत्ल के महज़र पर दस्तखत करेगा। तो अरुष्मा, रास्ते अगर तारीख हों तो बजाय रास्ता बदलने के एक दिया जला देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरुष्मा ने अपनी बोझल पलकें उठाईं। वो दूसरों की ज़िंदगी में दिया जलाने जा रहा था, दूसरों की रोशनियाँ मुहैया करने। इसकी ज़िंदगी को तारीकियों के हवाले करके इसे रोते देखकर वो इसके करीब आ गया। जिन लोगों को हम खुद अपनी रज़ा से छोड़ दें फिर उनके लिए रोया नहीं करते। इसने इसके आंसू समेटे। खुदा हाफिज़ चचा जान, और चची को मेरा सलाम कहना। उनसे कहना मैं बाद में मिलने आ जाऊँगा। फ़िलहाल मुझ में हिम्मत नहीं और ना ही मैं कमज़ोर पड़ना चाहता हूँ। और तुम भी अरुष्मा। वो जाते जाते पलट आया। जुदाई को रोग नहीं बनाना। वैसे भी थर्ड वर्ल्ड के रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। किसी अच्छे से बंदे का हाथ थाम लेना। खुदा हाफिज़। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और लंबे लंबे डिगभरता चला गया। दरिया टेम्स का सारा पानी उसकी आंखों में था, लेकिन फिर भी आंखें जो खुश्क थीं। वो शाम के गरूब की काली लकीर थी। बिनाई के फरेब को साहिल समझ लिया। पाकिस्तान से ख़तूत का तांता बन गया। शुरू में इसने ख़त पढ़े। जब हर ख़त का मज़मून एक जैसा निकला तो फिर उसने ख़त पढ़ने ही छोड़ दिए। यादें दुख देती हैं। लोग इन गमों को और हवा देते हैं, कुछ समझाने के बहाने, कुछ डांटने के बहाने। कोई इसे भूलने ही नहीं देता था। इन दिनों को, इन लोगों को जिनका नाम वो अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से से मिटा देना चाहती थी। वो जो वफ़ा की बंजर ज़मीन ने उसे बख्श गया था, वो इसमें यादों के बीज डालकर करती भी क्या। उसने अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया था। ज़िंदगी गुजारने का कोई तो बहाना होना चाहिए, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के बाद उसे पता चल गया कि मोहब्बत वो ज़ख्म है जो ज़रा सी ठेस लगने पर फिर नए सिरे से लौ देने लगता है, चाहे उसे कितना ही बहला कर क्यों न रखो। और माजी से हर नाता तोड़ने के बावजूद वो जिसकी वजह से इन हालों को पहुंची थी, उसको भुला नहीं सकी। कभी बहुत सारा सफ़र तय कर लो, फिर पीछे मुड़कर देखो तो पता चलता है कि आप वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे। अब तो यूँ लगता था जैसे उसने परछाइयों को चाहा था, और शायद अब इस उम्र को भी एक परछाई ही की तरह गुजरना था। पाकिस्तान से डॉक्टरों की टीम सेमिनार में शिरकत करने आई थी। शहबाज का नाम भी उनमें शामिल था। तुम जाओगी? कैथी ने उससे पूछा। नहीं, उसने इनकार कर दिया। एक दफ़ा जाकर अब मैं वापस नहीं पलट सकती। मोहब्बत कभी कुव्वत नहीं बख्शती, हमेशा कमज़ोर करती है, आपको भी और आपकी कुव्वत इरादी को भी। मेरी कुव्वत इरादी भी अब कमज़ोर पड़ने लगी है कैथी, और मैं यही नहीं चाहती। चाहने के बावजूद जुमला पूरा नहीं कर सकी, वरना कैथी को बताती कि उसकी कुव्वत इरादी अब कितनी कमज़ोर हो चुकी है। एक दफ़ा उसने सोचा था, काश शहबाज ने झूठ ही बोल दिया होता कि हाँ मैं लंदन ही में रहूँगा, बाद में तो इसके इख्तियार में होती। अगले ही लम्हे उसने अपने आप को मलामत किया था। लानत है तुम पर अरुष्मा, अभी तो सफ़र शुरू भी नहीं हुआ कि वो थकने लगी थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने मुतालिक इसे यूं खुद तरसी से कभी सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान में सब की शादियां हो चुकी थीं।
ہر شادی پر اسے بلاوے کا کارڈ اور خط ملتا، لیکن وہ ایک شادی میں ہی جا کر اتنا کچھ گنوا آئی تھی کہ مزید کا کبھی حوصلہ نہیں پڑا۔ بلکہ ایک دفعہ تو فارس نے لکھا تھا کہ اروشما آ جاؤ، اگر شہباز بھائی کی وجہ سے نہیں آنا چاہتی تم یقین کرو وہ تمہیں کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھائیں گے۔ ویسے بھی ان کی مصروفیات اتنی ہو چکی ہیں کہ میرے خیال میں ان کو یہ سب باتیں فضول ہی لگا کرتی ہوں گی۔ اروشما نے اس کے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ پر یقین نہیں کیا تھا۔ جو دکھ اس کی جڑوں تک میں اتر گیا تھا، پھر وہ اس سے کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ شکل نہ دیکھے، بات نہ کرے وہ الگ بات ہے، اب اتنے عرصے کے بعد اس کے آنے کی خبر سن کر وہ پھر سے کہیں وہ ملنے ہی نہ آ جائے، وہ پریشان سی ہو رہی تھی۔ تم کس لیے پریشان ہو؟ اس کے آنے سے یا اپنے جذبوں سے؟ شاید دونوں سے، اس نے اعتراف کیا، اور بات پھر وہیں پہنچ جائے گی جہاں سے چلی تھی۔ تم نے کبھی وہ سفر دیکھے ہیں جن میں جسم نہیں دل تھکتا ہے؟ میں بھی وہی سفر کر رہی، پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو اپنا آپ وہی نظر آتا ہے جہاں 6 سال پہلے تھا، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ BBC سے وہ اپنا پروگرام کر کے نکل رہی تھی کہ ایک دم ہی زمین نے قدموں کو جکڑ لیا۔ اسے یاد آ گیا اس کے شیڈول میں BBC سے اس کا انٹرویو کرنا بھی تھا۔ پھر وہ کیسے بھول گئی؟ اسے تو ایک ایک لفظ اس پر تھا۔ شہباز کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، ویسے بھی وہ اندھیرے میں تھی۔ اروشما نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ محبت میں بچھڑنے کے بعد آپ ہمیشہ فریق مخالف کے چہرے پر پچھتاووں کے عکس کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے بھی یہی عکس دیکھنا چاہا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ یک ٹک اسے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ پروگرام پروڈیوسر کے ساتھ اندر چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے کار میں لگے ہوئے ریڈیو کو 2 دفعہ آن کیا اور دونوں دفعہ بند کر دیا۔ دل کے کیے گئے انکشاف نے پہلے ہی سے نچوڑ کے رکھ دیا تھا جتنا وہ ٹوٹ چکی تھی، اب مزید کی ہمت نہیں تھی۔ گھر پہنچی تو کسی کے بتائے بغیر ہی اسے پتہ چل گیا کہ شہباز آیا تھا۔ امی نے بھی کوئی بات نہیں کی، وہ بھی خاموش رہی۔ اس نے اپنے اوپر فرصت کا ایک لمحہ بھی حرام کر لیا تھا، نہ جانے کون کون سے درد سل پال لیے تھے۔ امی نے اسے اس کے حالوں پر چھوڑ دیا، جس طرح سے انہوں نے اس کی پرورش کی تھی۔ اب وہ اسے زبردستی کسی فیصلے کی سلیب پر لٹکا بھی نہیں سکتی تھی۔ اور رہے ابو، تو وہ اولاد کی خوشی میں خوش رہنے والے باپ تھے، لہٰذا زندگی اس انداز سے کبھی سامنے نہیں آئی کہ اسے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کی ندامت کے سوا کسی اور بات پر شرمندہ ہونا پڑتا۔ حالات ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے کہ اچانک ہی گولف وار شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وقت اور حالات بدلنے لگے۔ کل تک جن کی نگاہوں میں تمسخر ہوتا تھا، انہوں نے اب اسے لفظوں کی شکل دینا شروع کر دی۔ اس کے دوستوں میں زیادہ تر انگریز لڑکیاں ہی تھیں، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہزاروں میل دور ہونے والی جنگ اسے اپنی دوستوں سے محروم کر دے گی۔ سلویا کا منگیتر خلیج کی جنگ میں مارا گیا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ ان کا پورا گروپ اس کی وجہ سے پریشر میں آ گیا تھا، لہٰذا وہ اور سارا خاموشی سے الگ ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ نسل پرستوں کے حملے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اب وہ اس صورتحال سے پریشان تھے، لیکن منہ سے کچھ بولتے نہیں تھے۔ لندن آج کل کوہر کی زد میں آیا ہوا تھا، مہینہ ہو گیا تھا، سورج نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ اس پر جو قنوطیت کا دورہ پڑا تھا تو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابو نے باہر جانے کو سختی سے منع کر رکھا تھا۔ دوست ویسے بھی چھوٹ گئے تھے، انٹرویو کے لیے اس نے اپلائی کر رکھا تھا۔ 1-2 جگہ سے کال لیٹر آ گیا تھا، لیکن ابو نے اسے باہر نکلنے نہیں دیا۔ باہر نہیں جاؤ، حالات خراب ہیں، لندن بالکل امریکہ بن چکا ہے، جہاں مغرب کے بعد آپ باہر نکل نہیں سکتے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سیاہ فام کی جگہ نسل پرست گنجوں نے لے لی۔ ابو پریشانی سے بار بار یہی کہتے، بلکہ گلف وار کے بعد تو ان کی ہمت کچھ اور ہی بڑھ گئی ہے۔ امی کبھی ابو کو تسلی دیتی، کبھی رونے بیٹھ جاتی۔ امی تھوڑی دنوں کی بات ہے، اروشما ان کو تسلی دیتی، گو کہ اسے بھی پتہ تھا کہ بات اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ جنگ طول کھینچتی جا رہی تھی، ساتھ ہی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ امی کا دل کیوں گھبرایا کرتا تھا، اور وہ کیوں وقت بے وقت رونے بیٹھ جاتی تھیں۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کتنی دیر گھنٹی بجتی رہی، لیکن اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ بڑھ کر فون ہی ریسیو کر لیتی۔ لعنت ہے تم پر اروشما، اس نے اپنے آپ کو ملامت کی۔ اتنی بھی کمزوری کس کام کی؟ اور اگر اتنا کمزور ہی پڑنا تھا، اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کو کس نے کہا تھا؟ اس نے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کا رسیور والا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف اس کے خالہ زاد عاصم بھائی تھے۔
उसने गहरी सांस लेकर उनका जुमला सुना। वो इसे सब्र व ज़ब्त की तलकीन करते नानी अम्मा के इंतकाल की खबर दे रहे थे। वो कि इसे कभी भी नानी अम्मा से इतनी मोहब्बत नहीं रही थी, फिर भी बेसाख्ता रो पड़ी। अरे आसिम भाई बौखला गए। अरुष्मा, अपने अब्बू को बुलाओ। शाबाश, जल्दी से। वो उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अंदर जाकर अब्बू को बुला लाई। अगला सारा दिन उसने अम्मी को अकेले संभालते हुए गुजारा था। अम्मी रो रो कर बेहाल हो रही थी और इसे अकेले संभालना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। अब्बू टिकट हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। अम्मी को संभालते संभालते खुद इतनी परेशान हो गई, एक दफ़ा तो इसका दिल चाहा कि खिड़की से छलांग लगाते। शाम तक टिकट का बंदोबस्त हो गया। मुश्किल ये थी टिकट सिर्फ 2 ही मिल सके थे। अब्बू, मैं नहीं जाऊंगी, आप और अम्मी चले जाएं। अब्बू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर चुप हो गए। बाज़ दफ़ा खामोशी बेहतर होती है। अम्मी लोगों को गए दूसरा दिन था कि आसिम भाई का फ़ोन आ गया। अरुष्मा, खाला, अम्मी लोग अब तक पहुँचे क्यों नहीं? क्या कह रहे हैं आसिम भाई? क्या मतलब? वो लोग? आसिम भाई जुमला पूरा नहीं कर सके और वो जुमला पूरा सुन नहीं सकी। रिसीवर उसके हाथ से गिर गया। और इसी तरह वो ज़िंदगी के शब से नबरद आज़मा थी, जब जीना तो दूर की बात, मरना भी मुश्किल लग रहा था। वो रात इसकी ज़िंदगी में आई हुई हर रात से ज़्यादा तवील और वहशतनाक थी। कितने लम्हे उसने साकित और जामिद बैठे गुजार दिए, बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी एहसास के। वो अपने नुकसान का हिसाब लगाना नहीं चाह रही थी। वो जानती थी कि इसके हिस्से में सिर्फ पशेमानी के सौदे ही आएंगे। वो जो किसी ने कहा था कि इन लोगों ने हर चीज़ को ख़रीदने के लिए क्रेडिट कार्ड रखा है, इस तरह उन्होंने तन्हाई का क्रेडिट कार्ड ख़रीद रखा है। ये इस माशरे का अलमिया है। आज वो भी इसका शिकार हो रही थी। धीरे धीरे खौफ उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। कंधा तो दूर की बात, कोई लहजा भी ऐसा मुयस्सर नहीं था जिनके सामने वो रो सकती। इस भागती दौड़ती दुनिया में वो जैसे ज़िंदगी की हर बाजी हार कर बिल्कुल खाली और जहन सी बैठी हुई थी। अचानक ही फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। अब ये कौन सी खबर सुनाएगा? उसका दिल चाहा टेलीफोन का सेट उठाकर नीचे फेंक दे। उसने आज तक इसे बुरी खबरें ही सुनाई थी और अब इसने आहिस्तगी से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सारा थी। हेलो सारा, वो बेताबी से बोली। अरुष्मा, सामने देखा है तुमने? मस्जिद को आग लगा दी है, वही जो 5th एवेन्यू के पास है। लेकिन क्यों? गल्फ वार की वजह से, सारा उदासी से बोली। तुम अपनी खिड़की से देखो, तुम्हें साफ नज़र आ जाएगा। सारा, 1 मिनट, फ़ोन बंद नहीं करना, मैं आ रही हूँ। इसने खिड़की से देख लिया था, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। हत्ता कि शोलों की हिद्दत इसे अपने गालों पर महसूस हो रही थी। अब वो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे। वो इतने मजहबी नहीं थी, फिर भी मुसलमान थी। कभी कभार इंडियन अखबार पढ़ लेती थी और इस बाबरी मस्जिद के बारे में भी जानती थी, जहाँ हज़ारों अफराद शहीद हो गए थे। उन्होंने मस्जिद को शहीद नहीं होने दिया और अब इतनी खामोशी से मस्जिद में आग लगा दी थी। आंसू बेख्तियार दोबारा इसके गालों पर आ गए और वह फ़ैसला जो 7 साल में नहीं हो सका था, वो एक लम्हे में हो गया। वो मज़बूत कदमों से टेलीफोन की सिमत बढ़ी। हेलो सारा। इसकी आवाज़ आंसुओं में भीगी हुई थी, मगर लहजा कितने अरसे के बाद खुद इसने अपना ही लहजा सुना था, जो इसका खासा हुआ करता था। सारा, आज़र भाई से कहकर मेरे टिकट का इंतज़ाम करवा दो। मुझ में हिम्मत नहीं, वरना मैं खुद ही कर लेती। तुम पाकिस्तान जा रही हो? हाँ। तुम्हें पता है क्या कह रही हो? हाँ। फ़ैसले सदियों के मोहताज नहीं होते सारा। यह और बात कि मैंने तवील साल बर्बाद कर दिए, लेकिन शऊर का एक लम्हा, आगही का एक पल सब कुछ बदल देता है। तुम शायद मेरी बात नहीं समझ सको सारा। कल मैं भी नहीं समझी थी। हर कोई अपने मरकज़, अपने असल की तरफ लौट कर जाता है। मैं भी लौट कर वहीं जा रही हूँ, जहाँ कोई मुझे सिर्फ इस वजह से डिग्रेड नहीं करेगा कि इराक़ जंग हार रहा है। उन लोगों की निगाहों में तमस्खुर नहीं होगा कि देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे टक्कर लेने का सोचा था, और वो अपने फ़ौजियों का बदला लेने के लिए मस्जिदों को आग नहीं लगाएंगे। कम ऑन यार, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही हो, मुझे लग रहा है। इसके अलावा भी कोई और बात हुई है? बात तो हुई है सारा। अब्बू वगैरह जिस जहाज़ में थे, वो जहाज़ अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा। मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तुम तो पागल हो, ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती हो। मुझे फ़ोन कर दिया होता या इंक्वायरी ऑफिस से पता कर लेती, तो तुम्हें पता चल जाता कि जंग की वजह से फ़ज़ाई सफ़र ख़तरनाक हो गया। इसलिए
ब्रिटिश एयरवेज पेरिस में रुक गया है, शायद कल सुबह तक फ्लाई कर जाए। ओह सारा, इसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है, शुक्र है खुदा का। तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो? हाँ, इसने कतियत से कहकर फ़ोन रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद अब्बू का फ़ोन आ गया। उसने उन्हें अपने फ़ैसले से मुत्तला करने के बाद सामान समेटना शुरू कर दिया। जिस वक्त वो कराची एयरपोर्ट पर उतरी, रात के 9 बज रहे थे। अम्मी अब्बू लोग शायद इस वक्त पिंडी में हों। इसने टैक्सी वाले को रोकते हुए सोचा। टैक्सी वाले को पता बताकर वो सीट से सर टिकाकर आराम से बैठ गई। जिस वक्त वो बेल बजा रही थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना बड़ा फ़ैसला और फासला तय करके यहाँ मौजूद है। फ़ारस कितनी देर मुंह पे हाथ रखे उसे देखती रही। फिर मिलने और आंसू बहाने का एक तवील सिलसिला था जो आधे घंटे तक जारी रहा। वो मिल रही थी और सब आंसू बहाने में मसरूफ़ थे। असल में वो इतना रो चुकी थी कि अब इसके पास आंसू नाम का कोई कतरा नहीं बचा था। वो तयम्मा का सामना करने से डर रही थी। पता नहीं वो क्या सोचें कि यही वो लड़की है जिसने उनके बेटे को रुला के रख दिया, उनकी ज़िंदगी को बेबरगो बार सहरा बना के रख दिया, और अब फिर तमाशा देखने आ गई। लेकिन खिलाफ तवक्को वो भी अच्छे तरीके से मिली तो इसके सारे खदशे दूर हो गए। सब लोग कहाँ हैं? अहमद भाई, साइम वगैरह तरावी पढ़ने गए हैं, आते ही होंगे। फ़ारस इसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए बैठी थी। हाथ तो छोड़ो, कहीं भाग नहीं रही हूँ। पता है हमें, तुम्हें जाना ही होता तो तुम कभी आती ही नहीं। सब बोल रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, इसे बीते दिन याद दिला रहे थे। हालांकि इसे ज़रूरत नहीं थी कि कोई इसे बीते दिन याद दिलाए। यादें जगहों से मशरूत नहीं हुआ करती। और अब इसने गहरी सांस ली। अब इस सारी दास्तान में वो न जाने कहाँ फिट होगी। वो सोचती रही, सबके आने का टाइम हो गया था। तयम्मी जल्दी जल्दी खाना लगवा रही थी। वो गुमसुम सी बैठी देखती रही। पता नहीं वो इन लोगों का सामना कर भी सकेगी या नहीं। वो कारपेट पर आंखें मौंदे पड़ी रही कि अचानक ही सब कमरे में आ गए। अरे, ये ईद का चाँद कहाँ से निकल आया? सब के सब चीखने लगे। भैया रुश्मा को ईद का चाँद नहीं कहो। सब के सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। एक लम्हे को तो इसे महसूस हुआ गोया वो चिड़िया घर में आ गई हो। लेकिन ये गनीमत था कि किसी ने इसे पहले हवालों से नहीं छुआ। उम्र रफ्ता को आवाज़ नहीं दी। इसके मौजूदा हवाले से इस पर तंस नहीं किया। वो खुश थे और उनकी आंखों में खलूस था, और इसके लिए यही काफ़ी था। सभी मगन थे, लेकिन फ़ारस की दूर रस निगाहों ने देख लिया था कि कितनी ही दफ़ा इसकी निगाहें दरवाजे तक गई हैं, और जैसे उदास होकर लौटी थी। वो चुपके से बाहर निकल आई। शहबाज भाई। कौन आया है? इससे तो मिलने मेहमान आया है। हर मेहमान से मिलना ज़रूरी तो नहीं। शहबाज ने इसे देखा। जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, बहुत थक गया हूँ यार। इतना दर्द सर पालेंगे तो यही होगा, फ़ारस मुँह बनाकर बोली। और शहबाज भाई, ये बताएं, जो लोग सबके लिए इतने आला ज़र्फ़ होते हैं, रोशनी और अच्छाई का संबल, वो बाज़ दफ़ा ऐसे क्यों बन जाते हैं? कैसे बन जाते हैं? शहबाज ने संजीदगी से उसे देखा। आप जैसे। फ़ारस नाराज़गी से बोली। अगर किसी की ज़िद की वजह से आपकी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद हों तो क्या आप इसके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे? आप इसे पेश ना करें गार्ड ऑफ ऑनर, लेकिन मिल तो लें। कभी कभी मिलना ना मिलना सब बेमायनी होते हैं। और उष्मा का इतना कसूर भी नहीं। नहीं, कसूर तो सब हमारे ही थे। बस अब जाओ, किसी को मेरे कमरे में नहीं भेजना, वरना तुम्हारी तरह वास करने बैठ जाएंगे। इसने ट्यूबलाइट ऑफ की। ये गोया इसके बाहर जाने का इशारा था। रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा था। अब्बू के 2-3 फ़ोन आ चुके थे। वो इसके फ़ैसले से खुश थे, लेकिन वजह उन्होंने भी सब लोगों की तरह नहीं पूछी थी। उनकी बेटी खुश थी, वो भी खुश थे। ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इस कदर तैयारियां देख देख कर अरुष्मा हैरान थी। अब वो पहले की तरह बोलती नहीं थी, बस हैरानी से बैठी आंखें पटपटाती रहती। अब्बू ने लंदन से पैसे भिजवाए थे कि ईद वगैरह की शॉपिंग कर ले, और ताई अम्मी कपड़े बना रही थी। ये और बात, अब किसी चीज़ में इसको दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त भी सब कमरे में ही बैठे हुए थे और बातें कम हो रही थी, लड़ाई ज़्यादा। अलबाम, ये तुम काला सूट पहनकर कहाँ जाओगी? फ़ाइज़ ने चुटकी से पकड़कर इसका सूट उठाया। तुम्हारी किस्मत पर मातम करने जाऊंगी। और कुछ सुनना चाहते हो?
जो सुन लिया वो काफ़ी नहीं है, जो तुम और सुनाना चाहती हो। क्यों बद्दुआएं दे रही हो? फारस ने टोका। बद्दुआएं ईजाद ही इसीलिए हुई थी कि नापसंदीदा लोगों को दी जाएं। अल्बाम ने नापसंदीदा को अंडरलाइन किया। तुम तो वो हो, क्या कहते हैं? फ़ाइज़ ने इसकी शान में शायद कोई जुमला बोलना था, लेकिन ऐन मौका पर भूल गया। खूबसूरत देवी। अल्बाम ने खुद ही खाली जगह को फिल कर दिया। शक्ल देखो अरुष्मा, खूबसूरत देवी की। इसने अरुष्मा से कहा, जो मुंह पर हाथ रखे बेसाख्ता हंस रही थी। कितने अरसे बाद वो खुलकर हंसी थी। इसको अपनी आवाज़ ही अजनबी लग रही थी। बाज़ औक़ात अच्छे रवैये भी दुख देते हैं। इसको ये बात अब पता चली थी। कोई इससे कुछ पूछता ही नहीं था, हत्ता कि वो भी नहीं जो हर इस्तेहकाक रखता था, लेकिन जिसने चुप की चादर ओढ़ ली थी और शायद इसके सामने ना आने की कसम खा रखी थी। चांद रात को सब चूड़ियाँ पहनने जा रहे थे। सब ने इससे भी कहा। वो इनकार करके कमरे में आ गई। पहले इतनी खुशियों से दामन भरा हुआ है, अब और चांद रात की खुशियाँ क्या समेटूं? इसने तलखी से सोचा। बीबी जी, बेगम साहिबा बुला रही हैं। ताई अम्मी बुला रही हैं। वो काहली से उठ खड़ी हुई। ताई अम्मी, कोई काम है? वो कमरे में दाखिल होती हुई बोली, लेकिन एकदम ठिठक कर रुक गई। उसे गुमान भी होता कि वो वहाँ मौजूद होगा तो कभी वहाँ कदम भी ना रखती। वैसे भी जहाँ 20 दिन गुजर गए थे, वहाँ 4-5 दिन और गुजर जाते, फिर इसे पिंडी ही चले जाना था। अम्मी अब्बू कोई फ़ैसला जब तक नहीं कर लेते। अब इसने दीवार से टेक लगाकर गहरी सांस ली। अरुष्मा बेटा, चाय बना दो। ताई अम्मा ने खुद ही इसकी मुश्किल आसान कर दी। जी अच्छा। वो पलट गई। वो इस वक्त कुछ भी सोचना नहीं चाह रही थी, हत्ता कि इसके मुतालिक भी नहीं। जिसकी तलब की राह गुज़र में लम्हे भी सदियों की तरह गुजरे थे, और एक उम्र की ख्वाहिश के बाद वो सामने भी आया था तो यूँ अनजान था। इसने बहुत मुश्किल से इन सातों में ख़ुद को संभाला हुआ था, फिर भी अपने आसाब पर कंट्रोल मुश्किल हो रहा था। ना ज़मीन के पास कदम थे, ना आँख के पास मंजर। किसे खबर थी कि वक्त सफ़र की लम्हा भी दिखाना था। वो केतली चढ़ाकर स्लेब पर हाथ रखकर खड़ी थी, बगैर इस एहसास के गर्म पानी ने उबाल खाकर इसका हाथ जला डाला है। वो जो एक सुई चुभ जाने पर ज़माने को इकट्ठा कर लिया करती थी, बगैर किसी एहसास के। साकी तो जामिद खड़ी थी। एकदम कोई अंदर आ गया। हाथ क्यों जला लिया? शहबाज ने इसका हाथ हटाया। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा था ना, तो अपना नुकसान क्यों कर लिया? मैंने तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर लिया है, अपनी उम्र का, अपनी मोहब्बत का, और सबसे बढ़कर अपनी अना का। आप किस नुकसान की बात कर रहे हैं? उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए आहिस्ता से कहा। इसके लहजे पर चौंक कर शहबाज ने इसे देखा। ये वो अरुष्मा तो नहीं थी जिसे वो जानता था। वो ज़्यादा तो नहीं, फिर भी बदल गई थी। आप उन लोगों को कभी नहीं भूल सकते जो जीते जी आपको गम दे जाते हैं। दिल कभी इन लोगों को माफ़ नहीं करता जो बग़ैर किसी वजह की ज़िंदगी को फ़ैसलों के स्लेब पर लटकाते हैं। लेकिन मोहब्बत में न जाने कौन सा वस्फ़ है कि एक निगाह, एक नज़र सब कुछ भुला देती है। शहबाज ने भी सब कुछ भुला दिया। याद रखा तो सिर्फ उसे जो सामने मौजूद थी। कितने ही लम्हे खामोशी में गुजर गए। आप ही मुझसे मेरे आने का सबब पूछ लें। क्यों? क्या करने को? और कोई बात नहीं रह गई जो मैं ये बातें करूं? वैसे ही मैं फ़जूल बातों में इतनी अच्छी रात ज़ाया नहीं कर सकता। पहले भी ज़िद की वजह से ज़िंदगी के कीमती 6 साल ज़ाया हो चुके हैं। फिर भी इसने कहना चाहा। मुझे यकीन था अरुष्मा कि तुम आओगी। शहबाज ने उसकी बात काट दी। चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन याद रखना, जिन्हें फ़ैसलों की बुनियाद नहीं हुआ करती। फ़ैसला वही होता है जो आप कर चुके होते हैं। हाँ, हालात कभी कभी इन फ़ैसलों को सपोर्ट कर देते हैं, वो दूसरी बात है। शहबाज ने इसकी तरफ देखा। आज के बाद हम गुज़रे दिनों को कभी डिस्कस नहीं करेंगे कि वो दिन जो गुज़रे वो कुछ इतने खूबसूरत भी नहीं थे कि उन्हें याद रखा जाए। ओके? शहबाज ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा। उसने भी मुस्कुराकर सर हिलाया कि अब जो वक्त और जो खुशकुन सातें रह गई थी, उसे शहबाज की रज़ा और खुशी से ही गुजारना था। अल्लाह हाफ़िज़।